Good morning, students. I welcome you again. As I started your prose session, in prose, your first lesson is the enchanted pool, which I gave you in your reading work, and I hope you all have read very well and now ready to understand explanation as well as comprehension of the lesson. So first stanza is there. When this lesson started, before it I told you that this lesson is written by C. Rajgopalachari, and which I gave you previous pick of the lesson. You have to study about this writer, where he was born, what was his works, all the things you have to read properly, and I will put up questions regarding this. Okay, so in lesson, first of all I would like to tell you what is the about lesson. This is an extract from the Mahabharata, means Mahabharat, which reflects the character of Yudhishthira. ये जो आपका लेसन है ये महाभारत से लिया गया एक छोटा सा पाठ है, जिसमें युधिष्ठिर के जो कैरेक्टर हैं, कैसा उनका चरित्र था, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि which type of characters युधिष्ठिर have. So as he was the eldest of the Pandavas, जो पांडव थे 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे वो, और उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, वो इसमें दिखाया गया है कि वो कैसा था, क्योंकि उनको धर्मराज कहा जाता था ना, धर्मराज, और ही राज. So in this lesson, his kindness, his intelligence, his patience, everything shows that really he was धर्मराज. इस लेसन में जो उनके जो कैरेक्टर की जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, वो बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वाकई में वो क्या थे, वो धर्मराज थे. क्योंकि एक बार क्या होता है कि उनके जो भाई होते हैं वो मुसीबत में फंस जाते हैं, मर जाते हैं, अभी हम इस लेसन में आपको बताएंगे, और वो अपनी काइंडनेस, अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस से कैसे वो यक्ष को, मीन्स जो यमराज के यक्ष के रूप में आते हैं यमराज, उनके सवालों के जवाब देके उनको कैसे संतुष्ट करते हैं, और संतुष्ट करने के बाद में अपने भाइयों को पुनः जीवित कर लेते हैं. सो दिस आई विल एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर, इन दिस लेसन. सो फर्स्टली द स्टोरी इज they all were wandering in the forest due to exile, and due to running, due to walking, they felt thirst, so and tired also. They sat at a place due to tiredness and hunger, that is tiredness and thirst. चलते चलते जब वो प्यास और भूख से परेशान हो गए, थक गए, तो एक जगह पे बैठ जाते हैं. एंड आफ्टर सिटिंग देयर, युधिष्ठिर he says to his brothers, go and see is there any pond or any source of water near about. So they went for सर्चिंग वाटर. वो बैठने के बाद में ईश्वर जब कहते हैं कि आसपास देख लो, अगर कोई पानी का तालाब हो या कोई पानी का साधन हो, क्योंकि प्यास बहुत लगी थी, सबके बहुत ज़्यादा प्यासे थे सबके सब. तो वो बैठे रहे युधिष्ठिर, और उनके बाकी के चारों भाई पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. युधिष्ठिर फ्रॉम हियर युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety, thirst. Now as he was thirsty, so he was waiting for his brothers as they went for in search of water, and he was now being curious. अब वो थोड़ा सा विचलित हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, and in his mind he was thinking that can they have been subjected to a curse. कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हों.
नाउ और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मुसीबत में पड़ गए हों या अभी तक वो पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हों। इन सर्च ऑफ कैन दे हैव फेंटेड or they became senseless? Now he is thinking, can they became senseless? Can it be have fainted or died of thirst? Now he is thinking that is it possible that they have been fainted and died of thirst and hunger? He is thinking in his mind, these all the ideas were there. Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. And now when he could not bear such type of thoughts, जब वो ऐसे विचारों को अपने मन में लाते लाते अब वो क्या हो गए, बियर असहनीय हो गए, ऐसे विचार उनके मस्तिष्क में आ रहे थे। तो वो असहनीय जब विचार हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका प्रतीक्षा करना छोड़ के खड़े हुए और उनकी तलाश में चल पड़े, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा प्यासे थे। तो वो प्यास थी और अपने भाइयों की तलाश में ये चल पड़े और ये आशा करते हुए कि वो किसी पूल पे यानी कि भी पाउंड की उसको क्या बोलते तालाब पे पहुँचेंगे, वहाँ पे वो पानी उनको मिल जाएगा और पी लेंगे। Yudhishthira proceeded from here. Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful grass meadow around a pool of clear water. But when he saw his brother lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अब युधिष्ठिर जब वो पहुंचते हैं एक तालाब पे, युधिष्ठिर उसी रास्ते की ओर प्रोसीड करते हुए बढ़ते हैं, डायरेक्शन विच हिज ब्रदर्स टेकन, जो डायरेक्शन उनके भाइयों ने ली थी, जिस तरह से वो गए थे उसी डायरेक्शन में ये बढ़ गए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग वो चलते रहे इन विच ही पास्ट मैनी दैट इन फॉरेस्ट द वे ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर्स, वहाँ पे जंगली भालू और चितकबरे हिरन एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी बड़ी जंगली चिड़िया। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और जब वो एक खूबसूरत हरे घास के मैदान के पास आते हैं, अराउंड अ पूल, जिसके जो एक तालाब के चारों ओर था वो मैदान, बिल्कुल हरा हरा मैदान, और उस तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। और जैसे ही व्हेन ही saw his brothers lying like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. और जैसे उसने भाइयों को अपने देखा कि वो बिल्कुल पड़े हुए हैं, बिल्कुल खंभे की तरह, जो पोल्स होते हैं उनकी तरह पड़े हुए हैं और बिल्कुल बेजान हो गए, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। जब उनको अपने भाइयों की ऐसी दशा को देखी उन्होंने, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और एक चीख मारते हुए जोरदार आवाज़ के साथ में रोने लगे। उसके बाद में क्या करते हैं, जब वो देख के उनको रोने लगते हैं, पड़े हुए हैं बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, तो वो जाते हैं उनके पास। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मौन। और जब वो अर्जुन और भीम के पास पहुंचते हैं, उनके चेहरे को छूते हैं, जो बिल्कुल शांत बिल्कुल पड़े हुए थे, चेहरे को छूते हैं और छू करके क्या कहते हैं, विलाप करते हैं। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या अब हमारी जो सारी प्रतिज्ञाएं थी, हमने जो सारी प्रतिज्ञाएं साथ में ली थी, क्या ये उसका अंत है, क्या ये उसका अंत हो गया है।
just when our exile is about to end, you have been taken away. Ever the God have forsaken in me in my misfortune. अब बोलते हैं कि जब ये हमारा वनवास बिल्कुल ख़त्म होने को था, बिल्कुल लास्ट में था, ख़त्म होने को, तब तुम लोग मुझसे छीन लिए गए हो. और इवन जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसने भी मुझे मेरी इस दुख की घड़ी में, मिसफॉर्च्यून मनीज मेरे दुर्भाग्य में, दुख की घड़ी में मुझको फॉरसेकन, मुझको छोड़ दिया है. उसको ईश्वर ने भी मुझको ऐसे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है मेरे. नाउ अब आपका जो स्टेंजा है, एज लुक्ड अपॉन हियर, यहाँ से लेके और ये ग्रेटेस्ट वेसल, ये आपका होमवर्क है. इसको आपको अच्छे से रीड करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई विल गिव योर होमवर्क टू दिस स्टेंजा एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस. हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको और आपको इतने स्टेंजा को पढ़ के उसमें से उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. अभी तो हम आपको रीडिंग के लिए दे रहे हैं. ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.